مارک کارنی نے آخر اپنے خطاب میں کیا کہا؟ ٹرمپ اور یورپ کیا سوچ رہے ہیں؟ ان کے رویوں اور تقریروں میں مسلمانوں کے لیے کیا سبق ہے؟ مشرق وسطیٰ GCC جو امریکہ کو دوست سمجھتے ہیں ان کے لیے کیا سبق ہے؟ اور سب سے بڑھ کر پاکستان کے لیے کیا سبق ہے؟ انہوں نے ورلڈ وار 2 کے بعد سے چلے آ رہے ورلڈ آرڈر کی بدنما حقیقت سب کے سامنے آشکار کر دی۔ چین سے پہلے امریکہ کو کوئی ایسا حریف نہیں ملا جو اسے ہر میدان میں ٹکر دے سکے۔ امریکہ چین سے خائف ہے۔ ٹرمپ کو یقین دلایا گیا تھا کہ وہ شام اور ایران پر ان کے ساتھ ہیں، لیکن گرین لینڈ پر نہیں۔ رولز بیسڈ انٹرنیشنل آرڈر اب ختم ہو گیا ہے۔ گریٹ پاورز جو بڑی طاقتیں ہیں وہ بغیر کسی پابندی کے اپنے مفادات کے لیے جیو پولیٹکس کو استعمال کر رہی ہیں۔ گلوبل سیٹ پوڈ کاسٹ ڈاکٹر ناصر بے کے ساتھ ابھی خدمت میں حاضر ہیں جی۔ السلام علیکم۔ کہتے ہیں کہ دھوکے کی تکلیف بہت شدید ہوتی ہے کیونکہ یہ ہمیشہ اپنوں سے ملتا ہے۔ فرض کیجئے آپ کا بچپن کا دوست جس کا گھر آپ کے ساتھ ہو، بالکل ایک دیوار ہو، آپ نے غمی خوشی اکٹھی دیکھی ہو، آپ کے کاروبار سانجھے ہوں، اعتبار اتنا ہو کہ آپ نے گھر کی فصیلوں پر چوکیدار بھی نہ رکھے ہوں کہ اس کے پاس ہے اور وہ آپ کے گھر کی بھی رکھوالی کر لیں گے۔ صدیاں ایسے ہی بیت جائیں اور پھر ایک دن وہ یہ دعویٰ کر دے کہ جس گھر میں آپ رہتے ہیں وہ بھی اسی کا ہے۔ انہی گارڈ سے آپ کو ڈرائے دھمکائے جو کبھی آپ کے گھر کی حفاظت کرتے تھے، تو آپ کو کیسا محسوس ہوگا؟ آپ کا بھروسہ ہی اٹھ جائے گا۔ سمجھ لیجئے کہ کچھ ایسا ہی کینیڈا کے ساتھ ہوا ہے، جب ٹرمپ بھائی صاحب نے کینیڈا کو اپنی 51ویں اسٹیٹ کہہ کر پکارا اور اس کے وزیر اعظم کو اپنا گورنر کہہ دیا۔ کینیڈا کے وزیر اعظم مارک کارنی جو سینٹرل بینکر ہیں اور کینیڈا اور برطانیہ دونوں کے سینٹرل بینکس کے گورنر رہے ہیں، نے ایک بڑا فیصلہ کیا اور امریکہ کے سب سے بڑے حریف چین کا دورہ کیا اور وہاں باہمی معاہدوں پر دستخط بھی کیے، کیونکہ وہ جان گئے کہ بین الاقوامی سیاست میں دوست یا دشمن نہیں ہوتے، بس مفادات ہوتے ہیں۔ جب تک آپ کے انٹرسٹ الائن ہوں آپ دوست، اور جہاں کانفلکٹ آف انٹرسٹ آیا آپ دشمن۔ کینیڈا کے وزیر اعظم مارک کارنی نے ورلڈ اکنامک فورم کے ڈاووس سمٹ میں گزشتہ دنوں ایک تقریر کی ہے جسے حالیہ دور کی گئی کسی بھی عالمی رہنما کی بہترین تقریر قرار دیا جا رہا ہے۔ اس مختصر سی تقریر میں انہوں نے ورلڈ وار 2 کے بعد سے چلے آ رہے ورلڈ آرڈر کی بدنما حقیقت سب کے سامنے آشکار کر دی، نئی جیو پولیٹیکل ریالٹیز پر بات کی اور مستقبل کے ممکنہ خطرات پر بھی بات کی۔ انہوں نے یہ تقریر کینیڈا کے نقطۂ نظر سے کی، لیکن اس میں عقل والوں کی یہ نشانیاں ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ڈاووس میں ٹرمپ اور یورپ کے رہنماؤں کے رویوں سے بھی بہت سی حقیقتیں کھل گئیں۔ ورلڈ اکنامک فورم کیا ہے؟ ڈاووس سمٹ اتنا اہم کیوں سمجھا جاتا ہے؟ 2026 کا سمٹ کرٹیکل کیوں تھا؟ مارک کارنی نے آخر اپنے خطاب میں کیا کہا؟ ٹرمپ اور یورپ کیا سوچ رہے ہیں؟ ان کے رویوں اور تقریروں میں مسلمانوں کے لیے کیا سبق ہے؟ مشرق وسطیٰ GCC جو امریکہ کو دوست سمجھتے ہیں ان کے لیے کیا سبق ہے؟ اور سب سے بڑھ کر پاکستان کے لیے کیا سبق ہے؟ یہ سب کچھ اور ہمارا تجزیہ آج کے پروگرام میں، تو حضور اگلے 10 سے 15 منٹ تک دھیان ذرا ادھر، اور اگر ہمارا کانٹینٹ پسند آ رہا ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ تو آئیے آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ورلڈ اکنامک فورم، یہ 1971 میں قائم کیا گیا جب جرمن انجینئر اور اکانومسٹ کلاس شواب نے اسے یورپین مینجمنٹ فورم کے نام سے شروع کیا۔ اس کا مقصد تھا یورپی کمپنیوں کو امریکی مینجمنٹ کے طریقوں سے متعارف کرانا۔ شروع میں یہ صرف یورپ تک محدود تھا، لیکن 1987 میں اس کا نام تبدیل کر کے ورلڈ اکنامک فورم رکھا گیا تاکہ یہ عالمی سطح پر کام کر سکے۔ یہ ایک نان پروفٹ فاؤنڈیشن ہے جس کا ہیڈ کوارٹر جنیوا سوئٹزرلینڈ میں ہے۔ فورم کا مشن ہے دنیا کو بہتر بنانا، کاروباری، سیاسی، اکیڈیمک اور دیگر لیڈرز کو اکٹھا کر کے گلوبل، ریجنل اور انڈسٹری کے ایجنڈاز تیار کیے جاتے ہیں۔ اور ڈاووس سمٹ یہ کیا ہے؟ یہ فورم کی سالانہ میٹنگ ہے جو ہر جنوری میں سوئٹزرلینڈ کے ڈاووس شہر میں ہوتی ہے۔ پہلا سمٹ 1971 میں ہوا اور تب سے یہ دنیا کے بڑے لیڈرز، CEOs اور ماہرین کے ملنے کا سب سے بڑا پلیٹ فارم بن گیا۔ یہاں پر گلوبل چیلنجز پر بات ہوتی ہے جیسے اکانومی، ٹیکنالوجی، ماحولیات اور جیو پولیٹکس، اور جب دنیا کے بڑے بڑے CEOs اور
बड़े बड़े ममालिक के रहनुमा इकट्ठे होते हैं तो साइड लाइन्स पर बहुत से मुआहदे होते हैं, बहुत सी गुफ्तोशनीद होती है, बहुत सी पॉलिसीज बनती हैं कि दुनिया को अगले साल में कैसे चलाना है। इस वजह से ये बहुत अहम है। अच्छा, अब इस समिट की बात कर लेते हैं जो अभी हाल ही में ख़त्म हुआ 2026 का वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का सालाना समिट 19 से 23 जनवरी तक डावोस में हुआ जी। थीम था स्पिरिट ऑफ डायलॉग, यानी मज़ाकरात की असास, उसकी रूह, यानी वन शुड लर्न हाउ टू सेटल थिंग्स विद द डायलॉग। इसमें 130 ममालिक के 3000 शुरका शामिल हुए, 65 हेड्स ऑफ स्टेट शामिल थे और दुनिया के टॉप 850 सीईओज और चेयरपर्सन्स। कुछ अहम शुरका में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप, कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर मार्क कार्नी, यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, फ्रांसीसी सदर इमैनुअल मैक्रों, यूरोपीय सेंट्रल बैंक के प्रेसिडेंट, उनकी प्रेसिडेंट क्रिस्टीन लगार्ड, बिल गेट्स, जेपी मॉर्गन के जेमी डायमंड थे, ब्लैक रॉक के लैरी फिंक थे, इसके अलावा इलॉन मस्क थे और पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, और इनके अलावा बहुत से और दीगर। हाईलाइट्स क्या थी जी? ग्लोबल इकोनॉमी पर बात हुई जहां पेशगोई की गई कि इस साल 3.3% ग्रोथ होगी, लेकिन ट्रेड टेंशंस हैं, पब्लिक डेट के खतरात हैं, एआई के लॉसेस पर तशवीश है, जियोपॉलिटिकल टेंशंस हैं जैसे यूक्रेन, ग्रीनलैंड। फिर इसके अलावा ट्रंप का बोर्ड ऑफ पीस इनिशिएटिव, उसके ऊपर वहाँ पर दस्तखत किए गए, लोग इकट्ठे हुए और जो पुराना आलमी ऑर्डर है उसके टूटने पर बहस भी की गई। ट्रंप और कार्नी की तकारीर का चर्चा रहा, हर कोई उन पर बात करता रहा और इसके साथ साथ यूरोप और अमेरिका के दरमियान एक तनाव, एक सर्द मोहरी भी दिखाई दी। ये समिट एक लैंडमार्क समिट माना जा रहा है, इसलिए नहीं कि यहाँ कोई ऐसा फैसला हुआ जिससे दुनिया की तकदीर बदल जाएगी, बल्कि इसलिए कि यहाँ पहली बार बिल्ली थैले से बाहर आ गई। मतलब कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर मार्क कार्नी ने एक तारीखी तकरीर की जो इतने बड़े फोरम पर किसी मगरबी आलमी रहनुमा की गई ब्रूटली ऑनेस्ट तरीन तकारीर में से एक है। इसमें एतराफ़ जुर्म भी था, दुनिया की नई जियोपॉलिटिकल हकीकत का मंजरनामा भी था और दुनिया की मिडिल और स्मॉल पावर्स के लिए मुस्तकबिल के लाया अमल के लिए रहनुमाई भी थी। तकरीर में कार्नी ने क्या कहा? 8 अहम नकात सुनिए। पहला, आलमी ऑर्डर का खात्मा। दूसरी आलमी जंग के बाद के जो कवानीन पर मबनी थी रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर अब खत्म हो गया है। उन्होंने कहा कि अब एक खुशगवार फिक्शन था जो टूट चुका है और एक तल्ख हकीकत का आगाज हो चुका है। ग्रेट पावर्स, जो बड़ी ताकतें हैं, वो बगैर किसी पाबंदी के अपने मफादात के लिए जियोपॉलिटिक्स को इस्तेमाल कर रही हैं। दूसरा, ताकत का कानून। थोसीडाइड्स का हवाला दिया गया कि ताकतवर जो चाहें वो करते हैं, कमजोर बर्दाश्त करते हैं। ये अब आलमी सियासत का कुदरती रवैया बनता जा रहा है। उन्होंने कहा कि जो ममालिक हैं, कंट्रीज, दे गो अलोंग टू गेट अलोंग, इसकी पॉलिसी अपनाकर खुद को महफूज रखते हैं, महफूज रहने की कोशिश करते हैं। यानी जो छोटे ममालिक हैं वो बड़ी ताकतों को नाराज करने से डर जाते हैं और इस डर से उनका साथ देते हैं, ये सोचकर कि इससे हम महफूज रहेंगे। लेकिन कार्नी का कहना था कि ये सोच अब काम नहीं करेगी। तीसरा, विकलाओ हेवल का इस्तारा। ये एक मजमून था जो कम्युनिज्म के बारे में लिखा गया था 1970-80 की दिहाई में, और इस मजमून में ये लिखा हुआ था कि ये कम्युनिस्ट निज़ाम झूठ पर जीता रहा। एक सब्जी फरोश की मिसाल दी गई कि वो बाहर बोर्ड लगा देता है जिस पर ये लिखा होता है कि दुनिया के तमाम मजदूर मुत्तहिद हैं, एक हैं। एक ऐसी स्टेटमेंट जिस पर वो खुद भी यकीन नहीं रखता, बस इसलिए करता है कि सब कर रहे हैं और निज़ाम में सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि जनाब, आज आलमी ऑर्डर भी इसी तरह झूठ पर कायम है। अब वक्त है कि ममालिक और कंपनियां ये निशान उतार दें और हकीकत को तस्लीम करें। दुनिया के तमाम मजदूर मुत्तहिद नहीं हैं। इसके बाद उन्होंने एक नई हकीकत की तरफ इशारा किया। उन्होंने कहा ग्रेट पावर्स अब माशी इंटीग्रेशन को हथियार बना रही हैं। टैरिफ्स हैं, फाइनेंशियल कोएर्शन है, सप्लाई चेन्स को दबाव के लिए इस्तेमाल कर रही हैं। मल्टीलेटरल इदारे, यूएन, WTO ये कमज़ोर पड़ चुका है। ममालिक अब स्ट्रेटेजिक खुदमुख्तारी, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की तरफ जा रहे हैं। एनर्जी, खुराक, मादनियात, फाइनेंस और सप्लाई चेन्स। 5वां पॉइंट था मिडिल पावर्स के लिए रास्ता। उन्होंने कहा कि अकेले कले बनाना महंगा है और कमजोर कर देगा। बेहतर रास्ता मुश्तरका खुदमुख्तारी और कोएलिशंस बनाना है। फिर
वैल्यू बेस्ड रियलिज्म अपनाने का उन्होंने मशवरा दिया और उन्होंने कहा कि इन उसूलों को अपनाइए, इंसानी हुकूक, खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत पर कायम रहें, लेकिन प्रैक्टिकल भी रहिए। इसके बाद उन्होंने अपने लिए एक हल बताया, कनाडा का हल बताया कि घर में ताकत बढ़ाएं, टैक्स कट्स, इंट्रा प्रोविंशियल ट्रेड बैरियर्स खत्म कीजिए, $1 ट्रिलियन इन्वेस्टमेंट की बात की, एनर्जी, AI, मादनियात, डिफेंस पर खर्च उन्होंने कहा कि इस तिहाई के आखिर तक दुगना कर दूंगा। फिर बैरून मुल्क तनव्वुर की बात की, चीन, कतर, यूरोप, भारत, आसियान वगैरह, इन सब के साथ नए मुआहदे। वेरिएबल ज्योमेट्री की बात की गई कि मुख्तलिफ मसाइल पर मुख्तलिफ इत्तेहादी बनाए जा सकते हैं। हो सकता है कि एक मैटर के लिए, एक चीज़ के लिए मुझे एक इत्तेहादी की ज़रूरत पड़े। एक इत्तेहादी आपके तमाम मसाइल का हल नहीं कर सकेगा। इस मसले के हल के लिए एक इत्तेहादी हो सकता है, दूसरे के लिए दूसरा हो सकता है। वेरिएबल ज्योमेट्री की बात की, यूक्रेन, आर्कटिक, AI, मादनियात, ये सिर्फ एक बंदे पर इन्हिसार करके तमाम मसाइल का हल नहीं हो सकता, एक मुल्क पर इन्हिसार करके। फिर मिडिल पावर्स को उन्होंने कहा कि इकट्ठा होकर एक तीसरा रास्ता अपनाना चाहिए, वरना मेन्यू पर होंगे। फिर हकीकत का नाम देना। उन्होंने कहा जनाब कि अब दुनिया बदल गई है और खुदारा हमें रूल्स बेस्ड ऑर्डर का खोखला नारा ना सुनाइए और ना ही हमें मजबूर कीजिए कि हम इस तरह का खोखला नारा लगाएं। इत्तेहादियों और हरीफों के लिए उन्होंने कहा कि एक ही उसूल रखें। ऐसा नहीं कि आप मेरे इत्तेहादी हैं तो आपके लिए उसूल और है, मैं आपका हरीफ हूं तो मेरे लिए उसूल और है। फिर खुद मुख्तारी का मतलब दबाव बर्दाश्त करने की सलाहियत है। उन्होंने कहा कमजोरियां कम कीजिए, मजबूत बनिए ताकि उसूलों पर खड़े हो सकें। और आखिरी पैगाम उन्होंने दिया कि पुरानी दुनिया वापस नहीं आएगी, इसका रोना न रोएं। इस टूट फूट से एक बड़ी, बेहतर, मजबूत और ज्यादा इंसाफ पसंद दुनिया बनाई जा सकती है। मिडिल पावर्स के पास ताकत कम है, लेकिन सच बोलने और इकट्ठे होने की ताकत है। कनाडा ने यह रास्ता खुले दिल से अपनाया है और दूसरों को भी इसी रास्ते पर चलने की दावत दे रहा है। तो ये जनाब मार्क टार्नी की वो तकरीर, उसका खुलासा, उसके कुछ अहम नकात मैंने आपके सामने पेश किए। एक बहुत ही पावरफुल तकरीर थी, एक ऐसे वक्त में जहां पर के लोग डर रहे हैं। कोई भी ट्रंप को ऐसी बात नहीं कहता जो वो नहीं सुनना चाहते। कहा जाता है कि लोग ट्रंप को वही सुनाते हैं जो वो सुनना चाहते हैं। वो दिन को रात कहते हैं तो लोग रात ही कहते हैं, वो रात को दिन कहते हैं तो लोग दिन ही कहते हैं। वो उन्हें कोई ऐसी बात कहना पसंद नहीं करते जो वो सुनना चाहते हो। एक ऐसे दौर में इस किस्म की तकरीर करना जो इतनी हकीकत पसंदाना हो, ये यकीनी तौर पर जुर्रत का काम है और मैं मार्क टार्नी को इस बात के लिए खिराज तहसीन पेश करता हूँ। लेकिन मामला सिर्फ यही नहीं था, टार्नी की तकरीर नहीं थी। हमने यूरोप को भी अमेरिका से खफा सा देखा। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन ने सदर ट्रंप को कॉल आउट किया, आड़े हाथों लिया, लेकिन ट्रंप का रद्द अमल ग्रीनलैंड सेंट्रिक था। ट्रंप का रवैया ब्लंट और ब्रूटल रहा। उन्होंने दुनिया को मैक्रोन के टेक्स्ट दिखा दिए कि देखिए ये आपका मैक्रोन जो यहाँ आकर इतनी गुफ्तगू कर रहा है, इतनी बातें कर रहा है, मुझे इतना सुना रहा है, ये देखें मुझे ये टेक्स्ट भेजता रहा है। हैरत की बात, उन टेक्स्ट में ट्रंप को यकीन दिलाया गया था कि वो शाम और ईरान पर उनके साथ हैं, लेकिन ग्रीनलैंड पर नहीं। इसका तस्करा अहम था। हुजूर, अब मैं मजीद इस पे वक्त ज़ाया करने की बजाय डायरेक्ट तजिए पर आता हूं और काम की बात करता हूं। सबसे पहले तो कार्नी की तकरीर एक एतराफ़ जुर्म था। कार्नी का मैंने आपको बताया कि ये 2 सेंट्रल बैंक्स का गवर्नर रहा है। ये डीप स्टेट का आदमी है। ये एक्चुअली आपके कैपिटलिज्म का समझ लीजिए कि गुरु है। उसकी बात है और जब वो निशानदही करता है तो उसका वजन ही मुख्तलिफ होता है। और वो सबसे पहले तो तकरीर में एक एतराफ़ जुर्म करता है कि दूसरी जंग अजीम से अब तक वो जानते बूझते हुए झूठ में जिंदा रहे। बड़ी ताकतों की हाँ में हाँ मिलाकर उनके मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उनके स्ट्रेटेजिक प्रोपेगेंडा और जारहियत का हिस्सा रहे, इस ख्याल में कि वो तो दोस्त हैं, वो तो हमसाए हैं, वो तो भाई हैं, उनके नजरियात वही हैं जो हमारे हैं, हमारे तो नजरियात एक हैं, हमारा और उनका जिल्द का रंग एक है, वो भी गोरे हैं, हम भी गोरे हैं, उनका और हमारा मजहब भी एक है, तो हाँ में हाँ मिलाते जाएंगे तो सब ठीक रहेगा। यानी दुकान के बाहर बोर्ड लगाते रहेंगे कि सब मजदूर मुत्तहिद हैं, इस सोच के साथ कि इस तरह हम बचे रहेंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। दरअसल हुआ क्या है, चीन से पहले अमेरिका को कोई ऐसा हरीफ नहीं मिला जो उसे हर मैदान में टक्कर दे सके। रूस दिफाई तौर पर मजबूत था, लेकिन माशी और टेक्नोलॉजिकल लिहाज से पीछे था। अमेरिका चीन से खौफ है, क्योंकि अमेरिका को चीन हर मैदान में टक्कर दे रहा है, चाहे दिफाई हो, चाहे माशी हो, टेक्नोलॉजिकल हो,
जियोपॉलिटिकल हो, हर लिहाज से डिप्लोमेटिक हो, उससे अमेरिका को हर जगह पर फंसा के रखा हुआ है। और यहां पर बकौल कार्नी के वो थोसेडाइट्स के ट्रैप में फंस गया है और इस खौफ में तसादुम की राह पर गामजन है। थोसेडाइट्स ये कहता है कि जब भी एक सुपर पावर को कोई और उभरती हुई पावर दिखाई देती है तो वो उससे जंग करने की कोशिश करता है, खौफ में मुब्तला हो जाता है, पैनिक कर जाता है, उसे लगता है कि ये मुझे चैलेंज करेगा और ये एक ट्रैप है जो उसकी तबाही की तरफ जाता है। तो वो कार्नी ने इसकी तरफ इशारा किया कि ये थोसेडाइट्स ट्रैप जो है उसमें अमेरिका फंस गया है और उसे खौफ है और इस खौफ में वो तसादुम की राह पर गामजन है। दरपर्दा यही बात थी, उन्होंने इसका हवाला दिया था। अब जब आप खौफ में आते हैं, पैनिक में आते हैं, तो फिर आप सर्वाइवल मोड में चले जाते हैं। सर्वाइवल मोड में कोई कानून, कोई उसूल नहीं रहता, कोई दोस्त, कोई दुश्मन नहीं रहता। ऐसे में पुराने कवानीन, मुआहिदे, मोरालिटी, पार्टनरशिप्स, पैक्ट्स सब उठाकर खिड़की से बाहर फेंक दिए जाते हैं। आलमी इदारे जैसे WTO, UN, इनकी कोई हैसियत नहीं रह गई, कोई बैनुल अक़वामी कानून नहीं है। ग्रेट पावर्स के लिए जो जरूरी होगा वो वही करेंगे। कार्नी की तकरीर बताती है कि पहले भी कोई इंसाफ, उसूल और कानून नहीं था। पहले किसी भी जारहाना अमल से पहले कोई जवाज तराशा जाता था, प्रोपेगेंडा किया जाता था, बैनुल अक़वामी तौर पर केस तैयार किया जाता था और अपने जारहाना अज़ाइम को जमहूरियत, इंसानी हुकूक, आज़ादी इजहार राय का लिबादा पहनाया जाता था। जैसे इराक पर वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन का इल्ज़ाम लगाया गया, क़ज़्ज़ाफ़ी पर जमहूरियत और आज़ादी इजहार राय सल्ब करने की तोहमत लगाई गई और फिर उन पर हमला कर दिया गया, उन्हें तहस नहस कर दिया गया। लेकिन अब आज की दुनिया में, नए वर्ल्ड ऑर्डर में, मोडोरो की तरह जिसको जरूरी समझा जाएगा उठा लिया जाएगा। ग्रीनलैंड के लिए जवाज नहीं तराशा जाएगा, बस कहा जाएगा कि हमें चाहिए और हम ले रहे हैं, तुम जो कर सकते हो कर लो। मिडिल पावर्स जैसे कनाडा और यूरोपीय ममालिक के लिए यह बड़ा मसला है, क्योंकि अब तक तो वो इन्हीं ग्रेट पावर्स की छत्रछाया के नीचे पलते रहे, उन्हीं की प्रोटेक्शन में रहे, उनके भाई पार्टनर्स इन क्राइम थे। लेकिन अब वो ग्रेट पावर्स के दरमियान फंस गए हैं। अब वो कोएलिशंस बनाने, खुद मुख्तारी के लिए मुश्तरका इन्वेस्टमेंट्स करने की बात कर रहे हैं। और इसी बात को कार्नी ने इस तरीके से किया कि हुजूर, अगर आप टेबल पर मज़ाकरात के लिए शरीक नहीं हैं तो फिर इसका मतलब है कि आप मेन्यू का हिस्सा होंगे। अगर आप खाने के लिए खुद नहीं आए तो इसका मतलब है कि आप ही निवाला है। बहरहाल हुजूर, मशरिक़ वुस्ता मुसलमानों और पाकिस्तान के लिए सोचने की बात है। सोचने की बात यह है कि अगर अमेरिका अपने सदियों के इत्तेहादियों यूरोप और हमसाये कनाडा के साथ ये कर सकता है, तो खलीजी ममालिक या इससे ज्यादा अहम पाकिस्तान के साथ क्या नहीं कर सकता। मैक्रोन के टेक्स्ट का हवाला मैंने जानबूझकर दिया था। वो यूरोप की बिगेट्री, उनकी मुनाफकत बेनकाब करता है, उनका हकीकी चेहरा दिखाता है। वो कहता है कि तब तक ठीक है जब तक तुम मशरिक़ वुस्ता के मुसलमानों पर बमबारी करते रहो, उनको निशाना बनाते रहो, करो शाम पर हमला, सीरिया पर तबाह करो ईरान को, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, मरते रहे फलस्तीनी, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। ये जो बयान दागते हैं सब मुनाफकत का हिस्सा है। उसको कहता है तुम वहां पर बमबारी करो, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम हमारे भाई हो। तुम हमारे बैकयार्ड ग्रीनलैंड में किस लिए कहते हो यार तुम्हें चाहिए, यहां पर किस लिए जंग करने आ रहे हो। इससे आपको पता चलता है कि मुनाफकत किस सतह पर है। मामला यह है हुजूर कि जो नया आलमी ऑर्डर है, ये दर हकीकत इसमें कोई ऑर्डर है ही नहीं, इसमें कोई उसूल है ही नहीं। खतरा यह है कि जैसे पहले वो किसी मुल्क पर हमला करने के लिए वजह घड़ते थे, सालों के प्रोपेगेंडा, डिप्लोमेटिक अलाइनमेंट करते थे, जासूसी करते थे। इराक का मैंने आपको बताया, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, फिर वॉर ऑन टेरर थी, आईसिस की तख्लीक थी, दीगर फॉल्स फ्लैग्स थे। अब वो मास्क उतार दिया गया, उन्हें ऐसे बहानों की जरूरत नहीं है। और अब उनके देखा देखी मिडिल पावर्स भी ऐसा कर सकती हैं और किसी भी मुल्क पर जंग मुसल्लत कर सकती हैं, उनको फॉल्स फ्लैग करने की भी जरूरत नहीं है। ये नया आलमी ऑर्डर ब्रूटल है, कोई उसूल नहीं, कोई जाब्ता नहीं, कोई दोस्त नहीं, कुछ भी नहीं। आप खुद अपने दोस्त हैं,
آپ کو خوراک، انڈسٹری، اکانومی اور ڈیفنس میں خود کفیل ہونا پڑے گا۔ ڈپلومیسی میں کوئی مستقل دوست نہیں ہے۔ یہ پرانی دنیا میں کہا جاتا تھا، اب یہ پہلے سے زیادہ سچ ہے۔ اس لیے حضور، چاہے مسلم دنیا ہو، مشرق وسطیٰ ہو یا پاکستان یا ان کے علاوہ کوئی بھی اور مڈل یا ڈیولپنگ ملک ہو، آج کی دنیا میں، اس نئے ورلڈ آرڈر میں جس میں کوئی آرڈر نہیں، یہاں پر خود انحصاری سب سے بہترین حل ہے۔ اپنے آپ کو مضبوط کیجئے، اور اگر مجبوراً کوئی دوست یا دشمن بنانا پڑتا ہے تو اچھو ڈرائیور کے ٹرک کے پیچھے لکھا یہ کوٹ ذہن میں رکھیے کہ سجن کوئی کوئی تے دشمن ہر کوئی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ شکریہ۔